जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 20 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 131 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, अदालत में हाजिर व्यक्ति के संबंध में प्रक्रिया। Section 131 says, if the person in respect of whom such order is made is present in court, it shall be read over to him, or if he so desires, the substance thereof shall be explained to him. सेक्शन 131 में बताया गया है, अगर वह व्यक्ति जिसके लिए आदेश दिया गया है अदालत में हाजिर है तो उसे वह आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, या अगर वह चाहता है तो उसका सार उसे समझाया जाएगा। Next is section 132 summons or warrant in case of person not so present। ऐसे व्यक्ति के हाजिर न होने की सूरत में सम्मन या वारंट। Section 132 says, if such person is not present in the court, the magistrate shall issue a summons requiring him to appear, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court। सेक्शन 132 में बताया गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति अदालत में हाजिर नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसे हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करेगा, या जब ऐसा व्यक्ति हिरासत में है तो उस अधिकारी को निर्देश देते हुए एक वारंट जारी करेगा जिसकी हिरासत में वह है, ताकि वह व्यक्ति अदालत के सामने लाया जा सके। प्रोवाइडेड दैट whenever it appears to such magistrate upon report of a police officer or upon other information, the substance of which report and information shall be recorded by the magistrate, that there is reason to fear the commission of a breach of peace, and that such breach of peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue a warrant for his arrest। बशर्ते कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य जानकारी पे जिसका विवरण मैजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा के आधार पर ऐसे मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि शांति भंग होने की आशंका है और इसे रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं है सिवाय उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने के, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। Next is section 133 copy of order to accompany summons or warrant। सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति। Every summons or warrant issued under section 132 shall be accompanied by a copy of the order made under section 130, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with or arrested under the same। सेक्शन 133 में बताया गया है कि धारा 132 के तहत जारी किए गए हर सम्मन या वारंट के साथ धारा 130 के तहत दिए गए आदेश की एक प्रति भी होगी, और ऐसी प्रति ऐसे सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाले अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसे सम्मन दिया गया हो या जिसे गिरफ्तार किया गया हो। Next is section 134 power to dispense with personal attendance, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अधिकार। Section 134 says the magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior, and may permit him to appear by an advocate। सेक्शन 134 में बताया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई दे तो वह किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है जिसे यह कारण बताने के लिए बुलाया गया हो कि उसे शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार के लिए बंद पत्र यानी बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, और उसे एक वकील के जरिए हाजिर होने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 135 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की सच्चाई की जांच। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 सेज
When an order under section 130 has been read or explained under section 131 to a person present in court, or when any person appears or is brought before a magistrate in compliance with or in execution of a summons or warrant issued under section 132, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary. सेक्शन 135 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब धारा 130 के तहत कोई आदेश अदालत में हाजिर किसी व्यक्ति को धारा 131 के तहत पढ़कर सुनाया या समझाया गया हो, या जब धारा 132 के तहत जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन या तामील में कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट उस जानकारी की सच्चाई की जांच करेगा जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, और अगर जरूरी लगे तो और भी साक्ष्य लेगा. नेक्स्ट इज subsection 2. Such inquiry shall be made as nearly as may be practicable in the manner herein after prescribed for conducting trial and recording evidence in summons cases. सबसेक्शन 2 में बताया गया है, ये जांच जहां तक मुमकिन हो उन तरीकों से की जाएगी जो आगे आने वाली धारा में सम्मन केस की सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्धारित किए गए हैं. नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3. After the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility or commission of any offense or for the public safety, may, for reasons to be recorded in writing, direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond or bail bond is executed, or in default of execution until the inquiry is concluded. सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत जांच शुरू होने के बाद और पूरा होने से पहले अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने से रोकने या अपराध होने या सार्वजनिक शांति में खलल डालने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है, तो वह लिखित कारणों के साथ उस व्यक्ति को शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दे सकता है, जिसके खिलाफ धारा 130 के तहत आदेश दिया गया हो, और उसे हिरासत में रख सकता है जब तक वह बंद पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता या जांच पूरी न हो जाए. Provided that a no person against whom proceedings are not being taken under section 127, section 128 or section 129 shall be directed to execute a bond or bail bond for maintaining good behavior. B. The conditions of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 130. बशर्ते कि ए. किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही हो, अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र भरने का निर्देश नहीं दिया जाएगा. बी. ऐसे बॉन्ड की शर्तें चाहे वह राशि से संबंधित हो, जमानतदारों की संख्या या उनकी आर्थिक जिम्मेदारी से संबंधित हो, धारा 130 के तहत आदेश में बताई गई शर्तों से अधिक सख्त नहीं होंगी. Next is subsection 4. For the purposes of this section, the fact that a person is a habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazards to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise. सबसेक्शन 4 में बताया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या इतना खतरनाक है
कि बिना सुरक्षा जमानत के उसका आजाद रूप से घूमना समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसे आम धारणा या अन्य सबूतों के जरिए साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5th, where two or more persons have been associated together in the matter under inquiry, they may be dealt with in the same or separate inquiries as the magistrate shall think just. Subsection 5th, जहां जांच के तहत मामले में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ जुड़े हों, उन्हें जैसा कि मैजिस्ट्रेट उचित समझे एक ही या अलग अलग जांचों में निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 6th, the inquiry under this section shall be completed within a period of 6 months from the date of its commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceedings under this chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated unless for special reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs. सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि इस धारा के तहत जांच को उसकी शुरुआत की तारीख से 6 महीने के समय के भीतर पूरा करना होगा, और अगर ये जांच निर्धारित समय में पूरी नहीं होती है तो इस अध्याय के तहत कार्रवाई उस समय की समाप्ति पर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विशेष कारणों से यानी कि खास कारणों से मैजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज करके अन्यथा निर्देश न दे। प्रोवाइडेड दैट where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceedings against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of a period of 6 months of such detention. बशर्ते कि जहां किसी भी व्यक्ति को ऐसी जांच के लंबित रहने तक हिरासत में रखा गया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अगर पहले समाप्त नहीं होती, ऐसी हिरासत की 6 महीने की अवधि या समय पूरा होने पर खुद ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 7th, where any direction is made under subsection 6th permitting the continuance of the proceedings, the sessions judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse. सबसेक्शन 7th में बताया गया है कि जहां कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देने के लिए उपधारा 6 के तहत कोई निर्देश दिया जाता है, सेशन जज पीड़ित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है अगर उसे लगे कि यह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं थी या अनुचित थी। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।